Hello friends, welcome to part 2 of attestation of instruments deeds under the Transfer of Property Act 1882. दोस्तों, in the last session we discussed certain points regarding attestation. हमने बात किया कि attestation का meaning क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि what is the purpose of attestation, why attestation is done. हमने बात किया बेयर प्रोविजन के बारे में, हमने बेयर प्रोविजन पढ़ा था. We discussed that बेयर प्रोविजन. We discussed the essentials and procedure of attestation कि attestation का procedure क्या होता है, and we also discussed the mandatory requirements of valid attestation. So that was in part 1. In today's session we are going to discuss about the qualifications of attesting witnesses. That means who can attest a particular deed or instrument, and we will also talk about that who cannot attest. किसी डीड को कौन अटेस्ट कर सकता है, कौन अटेस्ट नहीं कर सकता है, अटेस्टिंग विटनेसेस की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उन सब के बारे में आज बात हम करने वाले हैं. देन वी विल टॉक अबाउट कि अटेस्टेशन कैसे किया जाएगा इन केस ऑफ अ डीड जिसे एग्जीक्यूट किया गया है बाय ए पर्दानिशील वीमेन. अगर पर्दानिशील वीमेन ने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, उसने कोई ट्रांसफर किया है, उसने कोई डीड को एग्जीक्यूट किया है, तो उस केस में अटेस्टेशन कैसे किया जाएगा. And lastly, we will talk about that whether attestation is mandatory for all kind of transfers or instruments. या हर एक डीड में हर एक डीड को आपको इंस्ट्रूमेंट को आपको अटेस्ट कराना जरूरी है या नहीं है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us talk about the qualifications of a person who can be an attesting witness. That means who can attest. देखिए friends, any person who is having capacity to contract can attest a document or deed. अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a person who is major, a person who is of sound mind is a person who is having capacity to contract. So that person can be a valid attesting witness. He can validly attest any particular deed or instrument of transfer. अब आइए बात कर लेते हैं who कैन नॉट अटेस्ट. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि क्या एक party means party to the deed or instrument, whether that party, either transferor or the transferee, can attest that particular instrument. So here the answer is no. A party to the transaction or deed or instrument, that means transferor or transferee, cannot be an attesting witness himself or herself. So seller हो गया, donor हो गया, mortgager हो गया, जो कि ट्रांसफरर हैं, या ट्रांसफरी आपका बायर है, डोनी है, मोर्गेजी है, ये लोग अपनी ही ट्रांजेक्शन वाले जो डीड है या इंस्ट्रूमेंट है उसे खुद सेल्फ अटेस्ट नहीं कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर अ स्क्राइब और डीड राइटर. अभी स्क्राइब या डीड राइटर कौन होता है? अ पर्सन हु हैज प्रिपेयर्ड द डीड, जिसने प्रिपेयर किया है डीड को. Whether that person can be an attesting witness, the answer is yes, he can also be an attesting witness. But यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वो पर्सन उस डीड को दो कैपेसिटीज में साइन करेगा. He will be signing that deed in dual capacities. One capacity is as a scribe and another capacity is an attesting witness. And he will be signing that particular deed as an attesting witness with the intention to attest. So he should have animo attestendi, जिसके बारे में हमने लास्ट पार्ट में या पार्ट 1 में बात की थी. फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर द रजिस्ट्रार कैन अटेस्ट अ पर्टिकुलर डीड व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर हिम फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो द आंसर इज यस, अ रजिस्ट्रार कैन आल्सो बी द अटेस्टिंग विटनेस प्रोवाइडेड ही इज अगेन साइनिंग दैट डीड विद एन इंटेंशन टू अटेस्ट. अगर उसकी इंटेंशंस को अटेस्ट करने की है, with that animo attestendi he is signing that deed as an attesting witness, then that deed would be considered as a valid or validly attested deed. So again he will be signing in two capacities, as a registering authority and as an attesting witness. फिर बात करते हैं कि क्या एक पर्सन जो कि पार्टी तो नहीं है, एक पर्सन जो ना तो ट्रांसफरर है ना ही ट्रांसफरी है, whether that person can be an attesting witness, but that person may be interested in that transaction. So एक पर्सन है जो इंटरेस्टेड है ट्रांजेक्शन में, लेकिन ना तो वो ट्रांसफरर है ना ही वो ट्रांसफरी है. whether such person can attest that particular deed. So the answer is yes. Let us take an example. मान लीजिए एक थर्ड पार्टी ने मनी लैंड किया टू द मोर्गेजी. मोर्गेजी को उसने मनी दिया, एडवांस किया, एंड मोर्गेजी गिव दैट मनी टू द मोर्गेजर. यहां पर ये मोर्गेजर नहीं है, मोर्गेजी वर्ड है, राइट? So here in this particular situation, this third party is a person interested in the transaction. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पर्सन इस डीड को अटैच कर सकता है जिसमें वो इंटरेस्टेड है. सो द आंसर इज यस, ही कैन
do so, he can be an attesting witness, provided he is signing that deed with the animo attestandi. एक केस डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट पे. दिस इज अ लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट. कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंसीधर मोहंती. कुमार हरिश्चंद्र वर्सेस बंसीधर मोहंती, AIR 1965, सुप्रीम कोर्ट 1738. अब इस केस में सिमिलर सिचुएशन थी दैट द मनी इन द मनी mortgage transaction was advanced by a third party and not the mortgagee himself. mortgagee ने खुद पैसा नहीं दिया, उसने किसी और से पैसा लिया और उसने mortgager को वो एडवांस किया. अब यहाँ पर there was a third party who was interested in the transaction and that particular person was also the attesting witness. So the question arose that whether this deed is validly attested. So in this case, the court held that yes, a money lender who is a person interested in the transaction, that person can be an attesting witness because that person is not a transferor or the transferee. He is not a party to the transaction. Rather, he is only a person who is interested in the transaction. So here in this case, the attestation was held to be a वैलिड वन. सो एक पर्सन जो इंटरेस्टेड है ट्रांजैक्शन में बट वो पार्टी नहीं है उस ट्रांजैक्शन का, दैट पर्सन कैन वैलिडली अटेस्ट अ डीड. अब आइए बात कर लेते हैं व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ अ डीड व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय अ पर्दानिशीन विमेन. उसका अटेस्टेशन कैसे किया जाएगा. अब जैसा कि आप जानते हैं पर्दानिशीन विमेन होती है जो who remains in veil due to customs. उसके सोसाइटल कस्टम्स हैं, कम्युनिटी के कस्टम्स है, उनकी वजह से वो बिहाइंड द वेल रहती है. तो हो सकता है विटनेस ने उसे साइन करते हुए ना देखा हो बिकॉज शी वॉज बिहाइंड द वेल. सो उस केस में वैलिडली अटेस्ट उस डीड को कैसे किया जाएगा, आइए देखते हैं. देखिए दोस्तों, हो सकता है these witnesses know that particular lady. Obviously generally witnesses आपको जानते होते हैं, right? And they know the voice of that particular lady. So अगर वो उसको जानते हैं, उसकी वॉइस को पहचानते हैं, and they saw the lady signing that particular document या putting her mark on that particular document, so this would be a case of valid execution because it was done in presence of the witnesses. And then the witnesses signed that particular document. फिर witnesses ने अपने sign उस document पर कर दिए in the presence of the पर्दानशीन lady. So that would be a case of valid attestation. एक तो ये मोड हो गया. सेकेंड मोड जो हमारा अलाउ किया गया है अंडर आर लॉ TP 1882, दैट इज बाय वे ऑफ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट. मान लीजिए पर्दानशीन लेडी ने उस डॉक्यूमेंट को पहले एग्जीक्यूट कर लिया था, साइन कर दिया था, अपना थंब इंप्रेशन लगा दिया था. उसके बाद उसने क्या किया, शी गेव अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट टू द विटनेसेस दैट यस दिस डीड इज साइंड बाय मी. इन दैट केस आफ्टर दैट विटनेसेस ने क्या किया, उन्होंने दोनों ने अपने अपने प्लेस पे अपने सिग्नेचर कर दिए एज एन अटेस्टिंग विटनेस विद एनीमो अटेस्टेंडी. So here in this case, this deed would be considered as a validly attested thing. इस पर एक केस है कुंदन लाल वर्सेस मुसम्मत मुशर्रफी बेगम, AIR 1936, Privy Council decision 207 page number. Now in this case what happened, the content of the deed was read out by the scribe to the पर्दानशीन lady. पर्दानशीन लेडी ने उस कंटेंट को समझा, उस डीड को एक्सेप्ट किया, and she puts out a hand to sign the deed. And this particular fact that this deed was signed by the पर्दानशीन women, this fact was witnessed by the attesting witnesses. After that those witnesses signed that particular deed. उन दोनों witnesses ने उस deed को sign कर दिया. So in this case it was held that because those persons saw the lady signing the deed, they heard the voice of that particular lady, so this deed was held to be a validly attested deed. So पर्दानशीन women के केस में this is how attestation is to be done. Now the next question is that is it necessary that all the instruments of transfer या deed जो transfer की बन रही है, क्या उनको सबको आपको attest कराना जरूरी है under law? So the answer is no, it is not necessary. Only those instruments which are required by law to be in an attested form. लॉ जहां जहां रिक्वायर करता है कि दिस पर्टिकुलर डीड शुड बी इन अटेस्टेड फॉर्म, वहीं पर आपको अटेस्टेशन मैंडेटरी है, बाकी केसेस में मैंडेटरी ये नहीं है. जहां पर ओरल ट्रांसफर हो रहे हैं वहां पर आपको ना अटेस्टेशन की जरूरत है, ना राइटिंग की जरूरत है, ना पर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है. तो जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है बाय लॉ टू बी इन मैंडेटरी अटेस्टेड फॉर्म, उन्हीं का आपको अटेस्टेशन कराना जरूरी है बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, बाकी केसेस में जरूरी नहीं है. अब आइए जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी डीड्स हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जहां पर आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको उसे अटेस्ट कराना होगा बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस. गिफ्ट डीड की अगर बात कर लेते हैं, सेक्शन 123 अगर आप देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का,
उसमें दिया गया है कि दैट गिफ्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, वेन एवर अ गिफ्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इज बीइंग मेड, द प्रोसीजर इज गिवन इन सेक्शन 123. इट सेज दैट शुड बी डन बाय वे ऑफ अटेस्टेशन एज वेल एज रजिस्ट्रेशन. सो दो विटनेस उस डीड को अटेस्ट करेंगे एंड दैट डीड विल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज पर लॉ. सो दोनों रिक्वायरमेंट है, अटेस्टेशन भी जरूरी है और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है. किस केस में? गिफ्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी केस में. इसी तरीके से मॉर्गेज डीड की अगर बात करते हैं, मॉर्गेजेस की बात करते हैं, सो एक मॉर्गेज को छोड़ के, दैट इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, उसको छोड़ के बाकी जितने भी 5 तरह की मॉर्गेजेस हैं, उन सब के केसेस में अगर प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज ₹100 और अबव, अगर जो प्रिंसिपल मनी है उसको सिक्योर कर रहे हैं यहाँ पर, वो मनी का अमाउंट जो है वो 100 या अबव है, तो उस केस में एवरी डीड इज टू बी इन एन अटेस्टेड फॉर्म. तो वहां पर अटेस्टेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी. सो ये मॉर्गेज डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, ये कुछ ऐसी डीड्स हैं इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज like gift of immutable property, like where money principal money secured is 100 or above. इन केसेस में आपको जरूरी है कि आप उसका अटेस्टेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे. अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डीड्स ऐसी हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है टू बी इन एन अटेस्टेड फॉर्म, जिसके लिए अटेस्टेशन मैंडेटरी नहीं है. देखिए दोस्तों, लीज डीड की बात करें हम, एक्सचेंज डीड की अगर हम बात करें, सेल डीड की अगर हम बात करें, इन पर्टिकुलर लीजेस इन पर्टिकुलर डीड्स के केसेस में अटेस्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अटेस्टेशन इज नॉट मैंडेटरी. सेक्शन 54 अगर आप देखेंगे, लीज डीड के केस में अगर सेक्शन 107 आप देखते हैं, एक्सचेंज डीड के केस में अगर सेक्शन 118 आप देखते हैं, या फिर आप मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को हम उसकी बात करते हैं, सेक्शन 59, एज पर सेक्शन 59 दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन एन अटेस्टेड फॉर्म. सो इन सब डीड्स के लिए आपको अटेस्टेशन मैंडेटरी नहीं है. लेकिन आपने देखा होगा कि आपने कभी सेल डीड अगर देखा है तो सेल डीड में जनरली क्या होता है, देयर आर सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस. इन मैनी स्टेट्स सिग्नेचर्स आर बीइंग डन बाय द विटनेसेस और द डीड इज बीइंग अटेस्टेड बाय द विटनेसेस. अब वो क्यों हो रहा है, व्हाई? देखिए दोस्तों, सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, which is a central legislation, that central legislation does not require attestation of sale deed. सेल डीड के अटेस्टेशन को रिक्वायर नहीं करता है. अगर आप सेक्शन 54 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं भी अटेस्टेड टर्म यूज नहीं किया गया है, जो कि आपको मिलने वाला है गिफ्ट के केस में अंडर सेक्शन 123, जो कि आपको मिलने वाला है 59 में एज पर टीपीए सेक्शन 59 फॉर मॉर्गेजेस. लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट टर्म अटेस्टेड सेक्शन 54 में सेल डीड के लिए यूज नहीं किया गया है. लेकिन फिर ये अटेस्टेशन क्यों कराया जा रहा है कुछ स्टेट्स में, या मोस्टली स्टेट्स में क्यों कराया जा रहा है? दैट मे बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टेट लॉ और रेगुलेशन. क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट है, दैट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट. सो उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो लेजिस्लेट एज वेल एज पार्लियामेंट. So as per central legislation, sale deed is not required to be in an attested form. But जहां तक बात आती है किसी particular state law या regulation की, it may be mandatory that the sale deed will be in an attested form as per the requirement of that particular regulation. So आज के लिए सिर्फ इतना ही है दोस्तों. थैंक यू सो मच. आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आया, ये डिस्कशन आपको पसंद आया. अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. आपकी कोई क्वेरीज हैं वो मुझे जरूर बताइएगा. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.